Hi dear children, very good morning to one and all. All are fine now? All are safe now? Yes. Okay. So, we already completed our 3 lessons. Okay. So, what is the next step? So, we want to start next chapter. So, today we are going to take a new chapter. That means the 4th chapter. Okay. What is the chapter name? What is the chapter name? Yes. तमिल के संत कवि. No? Yes. तमिल के संत कवि. यह एक यात्रा वृत्तांत है. This is a travelogue. Okay. तमिल के संत कवि means the well-known poet of Tamil language. Okay. Children, then what is the previous knowledge about Yatra Vrittanta? Have you any previous knowledge? Actually, Yatra Vrittanta is writing a very Herculean task. Okay, isn't it? So maybe you read many travelogues. Okay, related many very famous persons already written the travelogues. Okay, so here also we are going to discuss a travelogue. Okay, actually travelogue means one person is visiting is somewhere, he just telling his experience or her experience, and very marvelous and very beautiful experience telling to us, that is called a travelogue. Okay, so maybe did you watch Safari TV? You can see all time travelogues. Okay, related many places, other countries, their religions and their dress style and their language and their food and all. Okay, okay, just we can also look what are the things the author telling. Okay, let us start, children. Okay, all of you take your book and listen. Look, मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला. कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था. मालूम हुआ कि वहां जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है. मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया. कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहां से समुद्र तट की झलक तो दूर, लहरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ रही थी. मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई. कमरे की एक दीवार पूरी शीशी की थी. उत्सुकता से झांका तो दूर जहाजों की रोशनियां दिखाई दी. शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था. हाँ, डाढ़े मारती समुद्र की ऊंची लहरों किनारे से टकरा रही थी. नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे. Okay, look, what are the meanings coming here? अवसर means opportunity or chance. Then कार्यक्रम means program. Okay, कार्यक्रम means program. आवाज means what? Sound. कार्यक्रम means program. Dade Marti means hitting the waves. Okay, hitting. Pass means near. Ayojak means organizers. Ayojak means organizer.
organizer. Okay. Jahaj means ship. Okay. Jahaj means ship. Then samudra means sea. You know that, and also simple meanings. You know. Listen. Look. मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला. I got a opportunity to go Tirunelveli to participate in a conference of teachers. Okay. So कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था. आफ्टर द कॉन्फ्रेंस आई वॉज गो टू त्रिवांड्रम. ओके. मालूम हुआ कि वहाँ जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है. आई नो टू गो देयर थ्रू कन्याकुमारी. ओके. आई नो टू गो देयर टू गो तिरुवनंतपुरम थ्रू कन्याकुमारी. ओके. देन मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया. आई मेड ए प्रोग्राम टू स्टे कन्याकुमारी. ओके. सो कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहाँ से समुद्र तट की झलक तो दूर लहरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ रही थी. आई वॉज ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू रीच द होटल कन्याकुमारी, क्योंकि बिकॉज वहाँ से समुद्र तट की झलक तो दूर लहरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ रही थी. फ्रॉम द शीशोर ऑफ द सी एंड द साउंड ऑफ वेव्स अवे फ्रॉम देयर. That's why he got the disappointment. Okay, because the seashore and the sea also away from there in the hotel. Okay. So मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई. मुझे उदास देख आयोजकों ने टू सी माई डिसअपॉइंटमेंट. द आयोजकों इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई. सो द ऑर्गेनाइजर्स contact through phone, then they just running, making a good facilities for me. Okay. Then because of seeing his disappointment, the organizers contacted through phone and arrange a good facilities. Okay. So कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी. One wall of the room full of mirror or glass. Okay. One wall of the room full of glass. उत्सुकता से झांका तो दूर जहाजों की रोशनियां दिखाई दी. झांका means peep, and that means a small sound. Okay. Then when I standing there with curiosity, then appeared the ships and heard a small sound of the ship. Okay. शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था. After that, everything drowned. Okay. After that, everything drowned. Then हाँ, हाडे मारती समुद्र की ऊंची लहरों किनारे से टकरा रही थी. Yes, the high sea waves were hitting the seashore. Okay. Then नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे. The house of sailors and fishermen near of the beach. Okay. Understood, children? This is just travelogue. He is just expressing his experience. Okay. Listen. Next paragraph. मैं थकी हुई थी, फिर सुबह 4 बजे उठाकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसलिए तुरंत सो गई. सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं. मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही.
एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। विवेकानंद तो है नहीं, फिर यह किसकी प्रतिमा है? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में। ओके, लुक, दखी मीन्स दखना, दखना मीन्स टू ट्राई। टू ट्राई। नैसर्गिक मीन्स नेचुरल. Okay, नैसर्गिक means natural. Then अद्भुत means wonderful. Okay, wonderful, wonderful. Then नौका विहार means boat race. Okay, boat race. Then टकटकी means gas. टकटकी. Gas. Okay. Then what is the next meaning? Ajnanata means ignore. Ignorance. Ajnanata means ignorance. Okay, Jhanata means ignorance. Okay, look, मैं धकी हुई थी. I was tried. What he tried. फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने दे, इसलिए तुरंत सो गई. I tried to wake up early in the morning, 4 a.m. and that to seeing the sunrise. That's why I slept very fast. Okay. So सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं. Travelers enjoy the fresh rays falling on the sea while coming by boat in the morning and to seeing the wonderful and natural view of sunrise. Okay, understood children? So मैंने अपने कमरे से ही बाल के दर्शन करना उचित समझा और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही. I understood it is good to see in my own room, and I stood there to gaze and watching the supernatural vision. Okay. एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया. एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई, रिमूव द विजन फॉर ए मोमेंट, तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया. एंड फाउंड ए ग्रेट स्टैच्यू सिचुएटेड इन द सी. ओके, विवेकानंद तो है नहीं. इज इट विवेकानंद? नो. फिर यह किसकी प्रतिमा है? सो हुज स्टैच्यू दिस? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में. बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस आई अंडरस्टूड a part of the Vivekanandas, some things is visible in the sea. Okay, not only Vivekananda's rock only, something also is there in the sea. Who understood it? He understood it. Okay, look next. जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तार प्रतिमा ही समुद्र के
वक्षस्थल पर विराज रही है तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया। श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते। पत्नी पहले आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। मृत्युशैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भगवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दान धरती पर गिरता उसे सुई से उड़ाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया। लोग, जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्ताव प्रतिमा ही है समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास की याद हो आया। When I understood whose statue is situated in the sea, it is a Tiruvalluvar statue. It is a Tiruvalluvar statue. Then suddenly I remembered a context related Tiruvalluvar, what I studied in childhood. Okay. श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करते आसन पर बैठते तो एक कटोरी मीन्स बाउल, कटोरी मीन्स बाउल, ओके। सुई मीन्स नीडल, सुई। नीडल, ओके। नेक्स्ट वर्ड, विशाल काय प्रतिमा मीन्स हुज स्टैच्यू, ओके, हुज स्टैच्यू। थाली मीन्स प्लेट, प्लेट, ओके। प्रसंग मीन्स कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ओके। ओके, लिसन। श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते। When he was sitting to had the food, then he will keep a bowl of clean water and a needle near of him. Okay. Then पत्नी पहले आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। The wife will arrange at first the clean water and the needle, then only she will serve the food. Okay. मृत्युशैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, in response to the question of wife Vasuki lying on the bed of death, what, भगवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता है। That is related one Hindu historical story. Okay, Vasuki means one snake's name. Okay, okay. The Vishnu is always lying on Vasuki. Okay, then he will remember that and he said to the Bhagavan, what, Bhagavan, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। Hey God, I consider food as a God. Okay. Then मेरी गलती से अन्न का जो दान धरती पर गिरता उसे सुई से उड़ाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। With my mistake, if any rice is falling in the land, I will take that rice with the needle and I will wash it that and I will eat that. Okay.
Then he just telling to the Bhagavan what he telling. Then with my mistake, if any rice is falling in the land, then I will take that with the needle and I will wash that and I will eat. Okay. Then आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया. Parosati means serve. Serve. Okay. You used to serve with such case. I never get a opportunity to use the katori and sui, the needle and a bowl. Okay. Who said the Tiruvalluvar said. Okay. बिल्डिंग को अब शुरू करो. ताजमहल जो बनाया गया है ये शाहजहां ने अपनी थर्ड वाइफ मुमताज की यादगार में बनाया था. मुमताज रहने वाली ईरान की थी जिससे शाहजहां ने लव मैरिज की थी. 3 वाइफ, इससे पहले 2 वाइफ थी. उनका नाम फतेहपुरी बेगम और दूसरी वाइफ का नेम खंडारी बेगम था. पहली वाइफ और दूसरी वाइफ से अरेंज मैरिज की, तीसरी वाइफ से लव मैरिज की. तो पहली दूसरी वाइफ के कोई बच्चे नहीं थे. थर्ड वाइफ के 14 बच्चे थे जिसमें कि 8 बच्चों की तो जन्म के समय डेथ हो गई. 6 बच्चे लाइव थे. 4 बेटे 2 बेटियां थी. दारा शिको सुजात मुराद औरंगजेब शाहजहां का छोटा बेटा था. 2 बेटियां थी जहान आरा और रोशन आरा. शाहजहां ने जब ये बिल्डिंग बनाई मुमताज की याद में तो ताजमहल की व्हाइट बिल्डिंग को बनाने में 17 साल लगे और 5 साल के अंदर में यहाँ मस्जिद और गेस्ट हाउस बना के कंप्लीट किया गया. तो कंटिन्यू जब 22 ईयर्स 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल की बिल्डिंग को बनाने में लगाए तो 18,000 लेबर शाहजहां ने ईरान से बुलवाई. 2,000 लेबर ताजमहल को बनाने के लिए इंडिया से आई. ये जो देखे मस्जिद है, मस्जिद को बनाया गया है वेस्ट साइड में और इसी तरीके की दूसरी बिल्डिंग ईस्ट साइड में बनाई गई है. उसको गेस्ट हाउस कहते हैं, जमान खाना. दोनों बिल्डिंग्स को देखने पर एक जैसी बनाई गई है. मुस्लिम हो चाहे हिंदू, इसको देखने में बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मस्जिद कौन सी है, गेस्ट हाउस कौन सा है. इजी सॉल्यूशन ये होता है कि मस्जिद को हमेशा वेस्ट साइड में बनाया जाता है एशियाई कंट्री के अंदर में. वेस्ट में इसलिए बनाया जाता है कि जो डायरेक्शन है मक्का मदीने का, सऊदी अरब का, वो वेस्ट में है, इसलिए मस्जिद वेस्ट में बनाई जाती है. ताजमहल की बिल्डिंग को बराबर देखने के लिए उधर में एक प्रैक्टिकली बिल्डिंग बनाई गई गेस्ट हाउस की, ताकि ताजमहल की व्हाइट बिल्डिंग को आप लोग लुक लाइक 4 साइड से सेम देख सकें. ये जो 4 मीनारें दी गई हैं ताजमहल की, चारों मीनारें देखने में तो सीधी नजर आती हैं, बट दीज आर नॉट लुक लाइक स्ट्रेट 4 मीनारेट्स. 2 डिग्री आउटसाइड में टिल्टेड हैं. अल्लाह ना करे कभी अर्थक्वेक, आंधी, भूकंप या तूफान ना जाए जिसकी वजह से ये चारों मीनारें ताजमहल के अंदर में न गिरे, आउटसाइड फॉल डाउन हो जाए. ताजमहल बिल्डिंग को इधर में व्हाइट मार्बल देखिए तो व्हाइट मार्बल जो है इंडिया का है, जो राजस्थान मकराना से आया था. आगरा से 450 किलोमीटर है. और रेड स्टोन जो आया वो यहाँ फतेहपुर सीकरी से आया, जो आगरा से 45 किलोमीटर है. इस बिल्डिंग की टोटल हाइट दी गई है 245 फीट और चारों मीनारों की हाइट दी गई है 175 फीट. मैन डोम को देखिए तो मैन डोम के ठीक नीचे में शाहजहां और मुमताज की ओरिजिनल मकबरा दिया गया है. ओरिजिनल मकबरा 1 साल में 3 बार दिखाया जाता है और डुप्लीकेट मकबरा है वो आप लोग एग्जैक्टली एवरीडे देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है. लेकिन डोम के ऊपर में जो पूरा कलश लग रहा है उस कलश के ऊपर में हाफ मून दिया गया है जो मुस्लिम लोगों का सिंबल होता है. और डोम के हाफ मून के बिल्कुल मिडिल में अल्लाह लिख रहा है और इसके बैक साइड से देखें तो मोहम्मद लिखा गया है. इस डोम के मिडिल में देखिए बहुत सारे डोम्स के ऊपर में हुक लगाए गए हैं. 1971 के अंदर में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो उस वॉर टाइमिंग में इस बिल्डिंग को काले कपड़े से इंडियन गवर्नमेंट ने कवर्ड कर दिया था ताकि ये बिल्डिंग्स नाइट के अंदर में ग्लो होती हुई दिखाई ना दे. क्योंकि इस बिल्डिंग की तीसरी खूबसूरती ये है कि ताजमहल में कोई आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आज भी नहीं है. ये बिल्डिंग आज भी नेचुरल ग्लो करती है जैसे कि डायमंड की तरह से होता है. और बाकी जो सारे जैम्स स्टोन लगाए गए हैं ये मून लाइट में ग्लो करते हैं जिस दिन 14वीं का चांद होता है. ये फ्रंट जो आयतें लिखी है. बाकी जो मेन गेट के ऊपर में कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं तो सबसे पहले गेट के अंदर से जो शाही दरवाजा है वहां से आते हैं, वहाँ सूरत फज्र और सूरत फज्र के बाद सूरत शम्स और बाकी व्हाइट ताजमहल की बिल्डिंग पे टोटल सूरत यासीन लिखी गई है. कुरान शरीफ का मेन चैप्टर है हार्ट ऑफ द कुरान जो ताजमहल के अंदर में चारों तरफ लिखा गया है. ये राइटिंग नहीं है, पेंट नहीं है, मार्बल के अंदर स्टोन को इनलेट किया गया है. तो ये जितनी भी आर्ट यूज की गई है ये सब पर्शियन आर्ट है. पर्शियन आर्ट इसलिए यूज की गई है क्योंकि 18,000 जो लेबर ताजमहल को बनाने आई थी वो पर्शियन थी. तो पर्शियन लोगों ने इस सारी क्राफ्ट को, इस सारी आर्ट को अपने हाथों से बना के तैयार किया.